Now, uh, what is clause 3? That now we will discuss. There are three parts in clause 3. Clause 3A, 3B, and 3C. 3A, either of, we have to take either action, either clause 3A or 3B or 3C. All actions, all three, all ABC can't be possible. So they are watertight, exactly watertight. ऐसे तीन ABC clause है. We have to choose any of them, any one of them. Okay. So clause 3A. 3A, when we take action against clause 3A, the security deposit stands forfeited. Okay. And contractor is free and we are also free. Security deposit जो कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पास दिया है फॉर द दिस वर्क, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा गवर्नमेंट को, और कॉन्ट्रैक्टर इज फ्री एंड वी आर आल्सो फ्री फ्रॉम द वर्क. Free from, contractor is free from our obligation and we are free from his obligations. Okay. Now 3B. 3B tells that balance work is to be executed departmentally by the government at the risk and cost of the contractor. Departmentally means, at the beginning I told you, agreement. So all work, agreement works are called departmental work. Means NMR, nominal muster roll, then your rate list, then A1, then A2. These four agreements, these four types of works are called departmental work. Means for implementation and execution, department is responsible for all these. So with these four methods, balance work is done by the department at that proper cost, and the excess cost which department requires for this balance work is to be recovered from the contractor. Contractor से वो recover करेंगे excess cost departmentally work done करने के बाद. Okay. And third, 3C is remaining work or balance work is to be executed by the contractor, sorry, by the another contractor which department fix at the risk and cost of this original contractor. Means another contractor will execute the balance work and the excess, whatever it may be, is to be recovered from the original contractor. These are the three types of action. Any one of them we can take. Now, it is. सर तो इस केस में वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन से कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड होगा? वर्क कंप्लीशन 3C केस. यस सर. जो कॉन्ट्रैक्टर ने जितना काम किया उसको अवार्ड होगा ना. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर ने अगर जितना हाफ काम किया है कि जितना कोई काम किया है तो उसका वर्क सर्टिफिकेट तो उसको अवार्ड हुआ, और बैलेंस वर्क जो कॉन्ट्रैक्टर करेगा उसको अवार्ड हो जाएगा. वर्क सर्टिफिकेट इज टू बी इश्यूड टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क ही हैज डन अकॉर्डिंग टू द हिज बिल. तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर का जो का है वो जो बिल अमाउंट है वो बिल अमाउंट उसका रहेगा, और लेटर कॉन्ट्रैक्टर का जो बिल अमाउंट है वो उसका रहेगा. You got me? Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Good question. Okay. So coming to original point, A, B and C. A में क्या बोला है कि बैलेंस वर्क के बारे में there is nothing one. Nothing tell about the balance work.
department can do either I mean departmentally or by another contractor, or not interested to do, or something is whatever department can do, because contractor has nothing to do with the balance work. ओके, कॉन्ट्रैक्टर को सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट होने के बाद वो चला जाएगा, उसका अपना संबंध भी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा. जस्ट लाइक देयर इज नो क्वेश्चन बिटवीन दिस टू. दिस इज लाइक इज अपना डाइवोर्स विदाउट दिस, क्या बोलते हो, डाउरी पगड़ी का, व्हाट इट मे बी, एलिमनी, हाँ, डाइवोर्स विदाउट एलिमनी. हाँ, या एंड बी और सी में वो अपने को पर मंथ देना पड़ता, दैट व्हाट बी एंड सी दैट इज देयर, कि भाई ही हैज टू गिव फॉर द बैलेंस वर्क, बैलेंस रिस्पांसिबिलिटी लाइज ऑन हिज शोल्डर एंड दिस कैन कॉस्ट. उसके उसके उसको छोड़ा नहीं अपन ने, एक्शन बी और सी में कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ा नहीं. जैसे मैंने ए को बोला है कि बस ही इज फ्री और अपन भी फ्री उससे, लेकिन सो फार एज बी एंड सी कर वो फ्री नहीं है, वो पूरा खत्म होने तक अपने साथ में है. और whatever excess amount, whatever it may be, even advertisement, even giving publication to the tender notice or fixing to the agency, इसका भी जो cost है, it is to be get recovered from the original contractor itself, because of failure on his part where we have to do like this. So every amount is to be recovered from him. Okay, whatever it may be, जो कुछ भी अपने पास है, और according to that we pass bill accordingly. मतलब वो उसका एडवर्टाइजमेंट अगर बैलेंस वर्क का अपन ने टेंडर में दे दिया, तो उसका जो पेपर का एडवर्टाइजमेंट बिल आता है, दैट बिल इज टू बी पास्ड एंड पेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ दिस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर by taking the amount of security deposit from his original contractor, or amount is to be charged MPW recoverable from him. Okay, means that means what I am telling you कि बैलेंस वर्क के लिए उसको छोड़ा नहीं, he has to do, उसको छोड़ देने, भैया ये जो कुछ भी आता है वो तेरा आता है, जो कुछ भी आता है वो तेरा आता है. So 3A, 3B and 3C are independent one बैलेंस वर्क के लिए. सर लेकिन 3B में भी उसको वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट उतने ही काम का मिलेगा जितना उसने किया है. सवाल नहीं रहता. 3A का को बी कहीं भी जो A B C कौन सा भी रहो, उसने जितना काम किया उसका उतना ही वर्क सर्टिफिकेट मिलेगा, बाकी उससे ज्यादा मिलने का सवाल ही नहीं आता. वर्क सर्टिफिकेट इज लिंक्ड ओनली विथ यू द बिल पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर. उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई संबंध नहीं है ना. एक कॉन्ट्रैक्टर इसमें ये डाउट होगा ना कि रिकवरी जो हम करेंगे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट बनती थी उसको निकाल के करेंगे ना, मतलब उसमें जो एक्सेस होगा. मान लीजिए उसने 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, 80 लाख का काम किया, नहीं, करेक्ट, 20 लाख का उसने काम नहीं किया. बराबर है. Whatever excess we have to pay on this account, whatever it may be, is to be get recovered from the contractor. You got me? Whatever excess. So it's very skillful to take action A, B and C. कभी कभी क्या होता है कि एट प्रेजेंट जो काम अपन कर रहे हैं वो काम और बिलो आ जाता है, या इक्विवेलेंट सेम रेट से आ जाता है, then there is no question, वो डिफरेंस तो जीरो है. सो डिफरेंस कितना रिकवर करना है, उसको कुछ भी नहीं रिकवर करना है. सो इट्स स्किलफुल, वो तो अपना स्किल है कि अपन सोच रहे हैं कि बी सी और ए में कब एक्शन कब कैसा लेना चाहिए. दैट इज अ स्किलनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट स्किलनेस नाउ वी विल डिस्कस ऑन दैट. सो सी, अगर शुरू में वर्क ऑर्डर फॉर 12 months अमाउंट 10 lakhs, अगर शुरू में at the beginning of the work order 1 महीने में उसने काम स्टार्ट नहीं किया, we have issued letter to the contractor, we have imposed penalty to him, still he has not done the work, then as per clause 3 अपने को एक्शन लेना है और उसको clause 3 का नोटिस दे दिया. So action should be taken clause 3A at the beginning of the work, क्योंकि जो बैलेंस वर्क का जो कॉस्ट है वो ज्यादा देर हुई नहीं उसको,
मतलब टेंडर नोटिस निकाल के अपन ने टेंडर फिक्स किया, उसके 2 महीने के बाद अगर फिर से वही टेंडर निकाल रहे तो वी एक्सपेक्ट दैट कि भाई सेम ऑफर समवॉट बिलो अबव वो अपने को मिल जाएगी। ओके, हियर सिक्योरिटी डिपॉजिट मींस जो फॉरफिट करना है, दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट इंक्लूड्स यूर दैट आई मीन कौन सा सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो नया है, वो बिलो बनने के बाद एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, दैट आल्सो इंक्लूड हियर, दैट आल्सो गेट फॉरफिटेड। वो तो है ही उसके लिए कि भाई वो बिलो देके काम नहीं कर रहा है, बाबा ले ले सिक्योरिटी डिपॉजिट, बचा है अपने पास। और इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने को सपोज 2% मैंने इसके सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए और बिलो भरा, बिलो कोट किया उसने, उसके लिए 5% लिए, तो 7% विथ मी। सो ये कॉन्ट्रैक्ट का मैं 2 महीने के बाद टेंडर निकालता हूँ और उसमें फ्लक्चुएशन टू द एक्सटेंट ऑफ 2-3% भी होता है, तो डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी हैविंग दैट मच सिक्योरिटी डिपॉजिट विद अस व्हिच इज फॉरफिटेड ऑफ कोर्स। उसमें तो पेमेंट नहीं करना है, दैट इज फॉरफिटेड, दैट इज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, बट देयर इज नो लॉस टू द डिपार्टमेंट एज सच। सो एट द टाइम ऑफ इनिशियल ऑफ द वर्क, या उसने 10% ही काम किया है, इनिशियली काम किया, 3 महीने हो गए, 3 महीने में 10% काम किया, और दैट इज नॉट टू द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, वी आर नॉट हैप्पी विद द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, इवन वी थिंक दैट ही विल नॉट कंप्लीट द वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, thereafter we go clause 3. In that case clause 3a is practical, or clause 3a is more suitable, more fit to this situation, appropriate to this situation. 3a is appropriate to this situation. Okay, simultaneously 3a is appropriate to last situation also, means 90% he has work done, 90% उसका काम हो चुका है, a full amount of security deposit with us, पूरा अमाउंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास है, दैट इज 4%, मींस बैलेंस 10% ही हैज टू डू द वर्क, और अपने पास 4% अपन फॉरफिट कर रहे हैं। अगर बैलेंस जो 10% काम है उसको 10 से 4% में 10 टू उसका अगर 40% भी अब होता है, तो देन वी कैन डू दैट वर्क इजीली, देयर इज नो लॉस टू द गवर्नमेंट। सो एट द initial stage or at the later stage, 3a is appropriate. Okay, and in the middle 3b and 3c is, we can say, more suitable, yeah, perfectly suitable, 3b and 3c. It doesn't mean the engineer or the person who is deciding 3a b c has to study the case, has to study the situation, and thereafter only he should go for 3a or 3b or 3c, because he has to choose any one of them, और अकॉर्डिंगली वो फ्यूचर में लगना चाहिए। सो उसका ब्रॉड थिंकिंग होना चाहिए, he must think broadly to the situation, to the position of work, to the implementation of work, etc. ब्रॉड थिंक करके उसने डिसाइड करना चाहिए। सो 3b अगर उसने 3b एक्शन लिया तो बैलेंस वर्क अपने को डिपार्टमेंटली करना है। डिपार्टमेंट मींस A1 A2 रेट लिस्ट NMR etc. ऑल दीज आर डिपार्टमेंटल, वही इसमें बैलेंस वर्क करना है, उसको पेमेंट करना है, और साइमल्टेनियसली द डिफरेंस अमाउंट इज टू बी गेट रिकवर्ड फ्रॉम देम। अगर 3C चूज करते हैं अपन और वही एक बार 3C का डिसीजन दिया है, तो बैलेंस वर्क अपने को डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट सेट से ही करना है बाय गिविंग टेंडर नोटिस टू द कॉन्ट्रैक्टर। इज इट सो? इज इट क्लियर? कौन से सिचुएशन में कैसे कैसे काम करना है, इस ये मैंने आपको बताया। और सर मेरा एक डाउट था। हाँ या सर किसी कॉन्ट्रैक्टर में क्लॉज 3 के तहत एक्शन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर वापस अपने डिवीजन में टेंडर भर सकता है? नहीं, द सेम टेंडर ही कांट नहीं सेम नहीं, डिफरेंस दूसरा टेंडर। जैसे until you blacklist him, he will the tender naturally ना, तो आपने उसको ब्लैकलिस्ट थोड़ी किया है,
यस सर, इसके लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है। एक टेंडर अगर वो लेता है तो वो कॉम्पिटेंट डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी, मतलब वो डिफॉल्टर ऑलरेडी है यस for सर, this. So he can't, I mean, give any, I mean, to give offer for the same. वो bid can't give any bid to this work, balance work, because he delivered that. और अगर उसने सपोज किया है तो वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस उसको रिकवर करके उसको ही देना है क्या फिर? नहीं सर, That's why he is competent. सवाल ही नहीं आता, क्वेश्चन ऑफ दैट इज, ओके सर, इट्स ओके, करेक्ट। सो जो कोई भी एक्सेस एक्सपेंडिचर, एक्सेस वर्क रहता है, इट्स टू बी गेट रिकवर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर. ओके, इज देयर एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम? बैलेंस वर्क that same contractor can't compete. Okay, now so far as our contractor 4, 5, 6, for contractor 6 for extension of time limit, that we have discussed ki extension kab dena hai if there is a fault on the department. Only extensions is there 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Clause 14 tells about the extra item rate list. That is the, sorry, extra item rate list. Clause 13 extra item rate list means whenever there is no specification in the contract for the atom which exists, means atom is not there but it exists on the work, so that is called extra item. और उसके लिए provision किया है called clause 14 के लिए. So that is not the, I mean, matter to be discussed. Now clause 15, even then if anybody has problem or that we can discuss at any time. Okay, clause 15. Clause 15 means no claim to any payment for compensation for alteration or restriction of work. ये इसमें भी 1, 2, 3, 4 पार्ट्स है. मेनली क्लॉज 15. अच्छा, आप लोगों ने तो मेरे को एक सवाल पूछा ही नहीं, और इन द स्ट्रीम में मैं भी भूल गया. क्लॉज 3 के पावर किसको है? इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव को सर. और लेट मी, नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी, देन द टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी. ओके, करेक्ट. 3 ऑप्शन अलग अलग आ गए. वन से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अनदर इज स्टेट इंजीनियर, अनदर इज हायर लेवल. ओनली थर्ड वन, फोर्थ बोलिए. Executive engineer on behalf of competent authority. Executive on the power, that is the fourth. Or I want answer from everybody, because this question has not in anybody's mind. That means it is expected that Kiba, you know this. Okay, कि भाई क्लॉज 3 का अपन ने पूरा डिस्कस किया है, तो who is authorized to take action as per clause 3? That is the question. टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी लिस्ट. टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी. Okay, tender accepting authority 6th. Okay, so see how many we are here. मेरे पास तो कोई नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स. 15 participants. पार्टिसिपेंट. तो 15 पार्टिसिपेंट में अपने को 5 ओपिनियन अलग मिले, वेयर ऑल आर इन द सेम फील्ड एंड ऑल आर सपोज टू टेक एक्शन. ओके, सो वी हैव टू डिसाइड वन ओनली ना. एक कोई तो भी एक ही होना चाहिए. एक जन बोल रहा है सुपीरियर इंजीनियर, एक जन बोल रहा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक जन बोल रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक जन बोल रहा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑन बिहाफ ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और थर्ड बोल रहा है टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी. ओके, यस, एंड एवरीबॉडी मस्ट बी श्योर ऑन हिज ओन वन, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग है. और ये लकीली इट इज अ रिकॉर्डिंग आल्सो, दे आर पुटिंग रिकॉर्डिंग ऑन ऑल दिस. सो
naturally we have to speak with reference to our codal provisions, simultaneously our tender provisions and simultaneously our, I mean, जो कुछ भी अपन think करते हैं according to that. So final is that clause 3 action full power is with execute engineer. Execute engineer who is engineer in charge has a full power to take action against clause 3. It is mentioned there. That is one case. Means execute engineer is the final authority to decide A or B or C and clause 3. First to decide clause 3, then choose A, B or C. Is it okay? So far as tender accepted by deputy engineer or tender accepted by superintendent engineer. Deputy engineer, I am using word in the sense that if at all some deputy engineer has given power and if at all he has accepted the tender, then that tender is also there. P1 tender is also. There are power to the deputy engineer. Okay. Even recently also there, but it is not implemented. But कुछ डिवीजन है जहां ये implementation किया हुआ है. Okay. So in that reference I am telling deputy engineer ने tender accept किया तो भी executive engineer and executive engineer ने tender accept किया even then executive engineer. जैसे clause 2 के एक्शन के लिए only AC is in power, in spite of that it is accepted by anybody. अब executive engineer is the final authority that is mentioned in our tender document itself. Even tender में that is mentioned. But what about when the tender is accepted by AC? ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आप लोगों से का मेरे को भी आया. So I used to refer the case immediately to the superintendent engineer कि this is the case, ऐसा ऐसा हुआ and clause 8 action is necessary in this place. Kindly approve. और उस वक्त executive ऐसी बोल देता है कि वो it is the power rest with the executive engineer. Executive can take, then we will take. और अगर वो approve करता है power is approved, then we can take. और अगर वो बोलता है कि नहीं I don't think कि वो clause thing is suitable, don't take. अगर C ने accept किया है तो same, at least C को तो मालूम होना चाहिए कि वो मैंने tender accept किया है, उसका क्या हो रहा है. So before taking clause 3 is the final action. It is just a divorce. It's a big decision. And if suppose such decision is to be taken, the tender accepting officer को कुछ तो भी intimate करना चाहिए कि भैया ऐसा कर रहे हैं हम, क्यों इसके सिवा हमको कोई चारा नहीं है. So this is the situation. This is the action we have to take. So this is the final what I suppose. Even they all you are thinking differently, you correlated with these provisions yourself and get modified or get even with your suitable level. Is it so? So thanks, and it's okay. Now coming to our clause 15. और कोई difficulty है क्या clause 3 के बारे में? कुछ मैंने जो बोला उसके बारे में कुछ doubt है क्या? Because somebody there are different 5 opinions and I have stuck up with the only one opinion. One ही नहीं, एक भी नहीं. इस केस में तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कह सकता है ना कि पावर मेरे पास है तो मैं कर रहा हूँ, नहीं करता मैं इन्फॉर्म. Right. तो हम मना तो नहीं कर सकते. Right. This also you can do, but you have to face the consequences अगर फर्दर आते हैं तो, because आपके बाप बैठे ऊपर. तो वो बात ठीक है सर, पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम ऑन पेपर तो मना नहीं कर सकते ना अगर उसे पावर है तो. अरे ऑन पेपर भी मना नहीं कर सकते. तो वो बोलेंगे भैया तू तो मेरा बेटा है तो मेरे को एक पूछना तो था, एक दिन मेरे को बोलना तो था कि तू ऐसा इतना बड़ा काम ले रहा है. बिकॉज दिस इज द, ये जो डिसीजन तू ले रहा है ये बहुत ही डाइवोर्स का डिसीजन है भैया. ये कोर्ट में सीधा नहीं मिलता. एट इज वो क्या है, वो ऐसे नहीं जाके तुम दे रहे करो, बिकॉज यू आर फाइनली क्लोजिंग द केस विद द फाइनल वर्डिक्ट. सर हायर अथॉरिटी उसकी कह सकती है, पर हम एज एडवाइजर तो नहीं कह सकते ना.
नहीं बोल सकते हैं ऐसे, मैंने तो बोला है भैया बोलो तुम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर तुमने एसी को रेफर किया, एसी बोलेगे ये पावर तो तुमको ही है, ओके करते हैं फिर, एटलीस्ट तुमको तो इंटीमेशन करना था भैया। और अगर एसी नहीं बोलता तो समझे? मैं कह रहा हूँ सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगर भेजना ही नहीं चाहता ऊपर, तो अब उसे हम फोर्स तो नहीं कर सकते ना सर, ऑन पेपर अगर नहीं है तो। आप बोल सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी फोर्स नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ वही बोलना कह रहा है। हूँ ना सर। आपका काम राइटिंग है, आपका वी कैन सजेस्ट कि भाई एटलीस्ट यू इन्फॉर्म देम कि भाई वी आर गोइंग टू टेक सच एक्शन, और उसने बोला कि नो नो नेसेसिटी फॉर इन्फॉर्मेशन, जस्ट योर एक्शन इज ओवर, सो फार एज यू इज कर योर रिस्पांसिबिलिटी इज ओवर। बिकॉज आपने क्या सोचा है, आपने यही सोचा है कि भैया ये करेक्ट है, ये गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया टेंडर है, ये 300 करोड़ का टेंडर है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म तो करो भैया कि हम फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि इसका डीटीपी भी उसके पास ही जाएगा बैलेंस वर्क का, तो बोलेगा ना ये ऑलरेडी किया, काम किया है मैंने, ये ऑलरेडी इंटीमेट है, मेरे को तो कोई इंटीमेट नहीं किया। सो एटलीस्ट यू इन्फॉर्म। एक्चुअली दिस इज माय ओपिनियन, ऑफ कोर्स इट्स नॉट कंपल्सन टू यू इवन, आप अगर वो भी नहीं लिखते तो ओके, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस है तो वो फेस करेंगे साइमल्टेनियसली। आपको ये पूछिए भी कि भैया ये व्हाई यू नॉट, आप तो ये बोलेंगे कि नहीं इट इज मेंशन दिस, आई मीन दिस पावर लाइज टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड ही हैज टेकन, दैट इज करेक्ट। बट अभी देखो आपके 5 ओपिनियन में वन हैज स्टेट द टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, एक ने बताया मैं नहीं वो कहा क्यों? था सर, मैं नहीं बिकॉज कहा था। थिंकिंग वैसा चल रहा है ना भैया, ये 300 करोड़ का 500 करोड़ का टेंडर है और 1 करोड़ का भी काम नहीं हुआ है, और ही इज टेकिंग एक्शन, और देयर द बिग यूजर स्लॉट एंड बर्न, एटलीस्ट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो, इसी को इन्फॉर्म कि भैया ऐसा ऐसा हम एक्शन करें, कॉपी टू सी, कॉपी टू गवर्नमेंट, कॉपी टू ऐसा दे दो, कॉपी सबको, इसी को इन्फॉर्म करके कॉपी सबको दे दो, लेट हिम टू टेक एनीथिंग, और उनके पास कुछ नहीं आया तो टेकिंग योर एक्शन, बिकॉज हमने तो इंटीमेट कर लिया अपने। Likewise, I am telling you, just in the sense that is the safeguard which we must take. It is a safeguard. So देखिए, आपको अपने को इंटरेस्ट क्या है, काम में है, एक्शन में इंटरेस्ट नहीं है अपने को, काम होना चाहिए और काम जल्दी होना चाहिए, काम प्रॉपर टाइम में होना चाहिए, काम प्रॉपर क्वालिटी में होना चाहिए, दैट इज इंटरेस्टेड। भाई मैं एक्शन करके सिक्योरिटी फॉरवर्ड करके गवर्नमेंट को इतना बचा, गवर्नमेंट को इतना प्रॉफिट कर दिया, अरे भैया ऐसा नहीं है, नहीं ये नो, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड इवन कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरवर्ड करके मैंने गवर्नमेंट का प्रॉफिट किया, नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट वी आर डूइंग एट दिस स्टेज, वन एक क्लॉज 3 का एक्शन लिया मींस वी आर किलिंग समथिंग समबडी एल्स देयर, so proper action at proper time is to be taken and with the proper thinking even. Of course these are my opinion, और मेरे ओपिनियन में मैंने सी को भी लिखा था कि ऐसा ऐसा है, तो सी ने इमीडिएट कुछ नरोवा कुंजरा में, I mean he has not given indication on the deadline, he has written letter, it's the sole power of the executive engineer, executive should taken, okay we are taking then, we are already taken, जस्ट आपको इंटीमेट किया भैया कि ऐसा ऐसा दे रहा है, वहां से आया इंप्लीमेंट कर लिया, राइट वाइज when it is like this we have to accordingly, so this needs discussion among us। ये पॉइंट में जैसे ये पॉइंट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पावर है तो अपन ले रहे, सो दिस नीड डिस्कशन, किसी का है, किसी सीनियर को कौन बोलता है, कौन किसी कौन से ओपिनियन से अलग दिमाग निकालता है, कुछ और कुछ दिमाग निकालता है, so we get a different solution in that case, so it needs discussion से ही अपना उसका वो broad view हो जाएगा, thereafter we can go to this, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसको फाइन लगाया, उसको फाइन ऑल्सो इंटीमेटेड टू द सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। फाइन में देखिए, फाइन और कॉन्ट्रैक्टर रिस्टैंड करना है, विच इज द लार्जेस्ट पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट,
किसी कॉन्ट्रैक्टर का फाइन निकालना है और उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा डेट करना है, कैंसिल करना है, विच इज लार्जेस्ट वन, विच पनिशमेंट इज लार्जेस्ट? बोलिए। To rescind the contract, sir. फिर देखिए, लार्जेस्ट पनिशमेंट के लिए पावर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और कम पनिशमेंट के लिए पावर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। कैन दिस बी? जैसे दूसरा अनदर मैं आपको ये देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 3 एक्सटेंशन इज टू बी ग्रांटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। एक्सटेंशन के पावर किसको है? हेलो, Tender accepting accepting authority. और वन टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, अनदर और कोई है इसका दूसरा करने वाला ऑब्जेक्ट? SC sir, SC. एसी। अच्छा, थर्ड इज देयर एनी? देखिए, एक्सटेंशन के पावर फुल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ही है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंटायर पावर। लेकिन वहां नोट में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शुड टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम द टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। दैट इज मेंशन इन नोट, बट फुल पावर इज विद द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। देखिए आप मैनुअल में है एक्सटेंशन टू द कॉन्ट्रैक्टर, फुल पावर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और नोट में लिखा है कि भी वो he should take the prior permission from the accepting authority। अब इसका मतलब ऐसा है कि वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को ही परमिशन है? नहीं, फुल पावर इज विद द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बट ही हैज टू ask to the proper authority to give permission me to give the extension to this contract। सर अथॉरिटी मना कर देगी तो क्या एग्जीक्यूटिव ले पाएगा एक्सटेंशन? सर अथॉरिटी अगर डिक्लाइन कर देगी कि हम एक्सटेंशन नहीं देना चाहते तो क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फिर भी उसको एक्सटेंशन दे सकता है? कैसे दे सकता है फिर, आप ही बताइए। तब तो सर अथॉरिटी तो फिर वही हुई ना जिसके पास जो एक्सेप्टेंस वाली हुई। सवाल ही नहीं आता। अथॉरिटी ने अगर एक बार नहीं बोल दिया है, नॉट आई एम नॉट इन ए रेडी टू गिव बिकॉज केस क्लियरली टेज देयर इज नो फॉल्ट ऑन द डिपार्टमेंट साइड। एक्सटेंशन कब देना है आपको? डिपार्टमेंट साइड का फॉल्ट है तब। इफ देयर इज ए कॉन्ट्रैक्टर फॉल्ट देन व्हाट इज एक्शन? क्लोज टू एक्शन। सवाल ही नहीं आता। और डिपार्टमेंट का फॉल्ट नहीं है, अब जब अथॉरिटी के पास गया, वो जो कोई वॉट एवर इट में भी अथॉरिटी, उनके पास गया पूरा केस और उन्होंने पूरा पढ़ा, पूरा देखा, बोले ये इसमें तो डिपार्टमेंट का फॉल्ट दिख ही नहीं रहा, उनको दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा है, एंड ही इज द फाइनल अथॉरिटी। वो बोलते नहीं नहीं एक्सटेंशन जरूर है इसको, देन व्हाट इज द एक्शन? हाउ कैन एग्जीक्यूटिव गिव द एक्सटेंशन? उसको तो फिर उसको एक्शन लेना ही चाहिए। यू गॉट मी? यस सर, यस। सर फिर टेक्निकली तो पावर टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास ही हुई ना, क्योंकि वो परमिशन नहीं देंगे तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दे नहीं सकते। हेलो, टेक्निकली क्या है सर? टेक्निकली तो पावर टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास ही हुई ना, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना तो वो दे नहीं सकता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। करेक्ट ना? ये तो समझ तो लाइकवाइज दैट आई एम टेलिंग क्लॉज 3 का टेक्निकलिटी के उधर है, इवन दो इट इज फुल पावर गिवन टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, टेक्निकलिटी उधर है लाइकवाइज, दो इट इज नॉट मेंशन। उसमें नोट में लिखा, उसके नोट में मेंशन्ड है, इसके नोट में मेंशन्ड नहीं है। तो अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कल को ये बोले कि नहीं ऐसा कहाँ लिखा है क्लॉज 3 में, मुझे दिखाइए, तो वो नहीं दिखा सकता ना सर हम। तो बोलेगा ना ठीक है ना भैया, बेटा तू ये किया तो ओके, इट्स ओके, देखते हैं फ्यूचर तेरे को, वो तो बोलेगा ना, वो बाप है ना, तो ही कैन टेल ओके ठीक है, तो बोलेगा ही, सवाल ही नहीं आता। तुमने अनले से आगे 600 करोड़ का टेंडर है और वन फाइन मॉर्निंग ही इज वो कैंसिल कर रहा है, 1 करोड़ का भी काम नहीं हुआ है और वो कर रहा है, और देयर इज ए डिफॉल्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, साइमल्टेनियसली डिफॉल्ट फ्रॉम द व्हाटएवर इट मे बी, वो तो बोलेगा कि वो मेरे को इंटीमेट क्यों नहीं किया,
अरे मेरे को बोलने था, अच्छा चलो, नो डोंट इंटिमेट मी, डोंट राइटिंग मी। देयर आर मीटिंग्स, उनके हमेशा एवरी मंथ मीटिंग रहती है। एवरी मंथ में उसको तो इंटिमेट कर सकते भैया कि भाई सर आपने एक्सेप्ट किया है, आपका टेंडर है, ये टेंडर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर, यू टेल मी व्हाट शुड आई डू। इज पावर रेस्ट विथ मी बट गाइड मी। अच्छा दूसरा एक है, even though power is with executive engineer, can executive engineer seek guidance from higher authority? In every case. Problem क्या है? In every case they can go. Yes, मैं किसी ने ऐसे बोला तो मैंने बोला जस्ट हमको सर आपको इसमें प्रॉब्लम, ये जो हम बोल रहे हैं ये उस केस में बोल रहे हैं, हम तो एडवाइस यही करते हैं कि टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी करे, पर ये उस केस में है कि कई बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एडमेंट होते हैं, तो उस केस में ऑन मतलब उसे हम सपोर्टिंग कुछ नहीं दिखा सकते कि क्लॉज में ऐसी प्रोविजन है। वही तो आपको मैंने क्लियर कट बोला कि आपके नोटशीट में है, इवन दो ही बाईपास द नोटशीट, ही टोल्ड द टेक एक्शन एंड गिव द लेटर टू द कॉन्ट्रैक्टर। उसने ओरली उनको पूछा होगा, हाउ डू यू नो? वो तो उनकी जवाबदारी है ना भैया, वो उनकी जवाबदारी, उनका है। टेक्निकली यू डोंट नो बट ओरली उन्होंने उसको इंटीमेट किया है, और दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग कि भाई ऐसा एक्शन ले लो, मैं आई एम रेडी। ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हिज शोल्डर, यू आर फ्री। एवरी टाइम आई टोल्ड यू कि आपका जो काम है सिर्फ लिखने का है, बाकी तो रेस्ट पावर्स इज विद देम एंड दे कैन इंप्लीमेंट, दे कैन डू व्हाटएवर दे कैन डू। ओके सर क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को काम की ब्रेक करने की अथॉरिटी है? मान लीजिए कि एक जैसे कोई वर्क है, मान लीजिए 1 करोड़ का है लाइनिंग का वर्क, अब 50 लाख के ऊपर तो वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ऊपर जाएगा। तो कभी कभी एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, जैसे 1 करोड़ का या 90 लाख का काम हुआ, उसको 2 पार्ट में कर दिया। लाइनिंग जैसे 1 से 10 किलोमीटर की लाइनिंग हुई तो 1 से 5 का 1 टेंडर कर दिया, 5 से 10 का 2 टेंडर कर दिया, और उसको 2 पार्ट में कर दिया। फिर वो 50-50 लाख के नीचे हो जाएंगे और वो फिर वो अपने अंडर में कर सकते हैं। तो क्या ये अथॉरिटी उनकी है कि किसी बड़े काम को वो ब्रेक करके अपने अंडर ले आए? दिस इज कॉल्ड द वर्क, और अपने मैनुअल एमपीडब्ल्यू मैनुअल में देयर इज ए प्रोविजन फॉर दिस कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो ओरिजिनल एस्टिमेट जिसके पावर में है उसकी परमिशन तुमको लेनी पड़ेगी। दैट इज क्लियर कट मेंशन इन द मैनुअल, क्लियर कट। कि अगर सपोज 10 करोड़ का काम है और एग्जीक्यूटिव को पावर 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ के वो 10 टेंडर बना रहे, लेकिन 10 करोड़ का एस्टिमेट तो वो प्रॉपर अथॉरिटी ने सैंक्शन किया है, सीवी का जो कुछ भी होगा उन्होंने वो प्रॉपर सैंक्शन किया है, और एग्जीक्यूटिव उसके ब्रेकअप करके 1 करोड़ के ऐसे ऐसे बना रहे, तो ही हैज टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम द दैट टेंडर सेक्शन। और टेंडर का जो 10 करोड़ का जिसको पावर है उसकी जो अथॉरिटी जो उससे वो प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा। दैट इज क्लियरली मेंशन इन एमपीडब्ल्यू मैनुअल, clearly mentioned. Please go through it. You can put that even para number so and so, और according to that वो correct है आपका कि भाई it requires permission from the competent authority of tender sanctioning competent authority। वो full amount का टेंडर जिसका है वो सैंक्शन करने की जो अथॉरिटी है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और दैट टू प्रायर क्लियरली में। ओके सर लेकिन हम अपना रोल तो तभी ला सकते हैं ना जब वो डिवीजन लेवल पर हो। अगर यही काम एससी या सी लेवल पर हो रहा होगा तब तो हम उससे कुछ नहीं कर सकते ना। सवाल ही नहीं आता, ये वैसी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, बट सो फार एज डिवीजन तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब ऐसे करेगा, अगर किंग ही बोल रहा है, अगर राजा ही मतलब रोड से मतलब दाई ओर से लेफ्ट साइड से निकलना है और राजा बोलता है कि मैं नहीं, मैं राइट साइड से निकलता हूँ, तो वो राजा है भैया, वो क्या करेगा? only with reference to our situation, और अपने पास जो कुछ भी है डिवीजन में जो कुछ भी अकॉर्डिंग टू दैट। बट डिवीजन के लिए आप सकते हैं, अपन लिखना भी चाहिए, ये को बोलना भी चाहिए, इट रिक्वायर्स अ परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इट्स ओके 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 ओके।
So coming to the clause 15. Clause 15 में क्या सर है? एक डाउट है ओके ओके, सर, एक बार में एक्सटेंशन कितने दिन का मिलता है सर मैक्सिमम? कोई जरूरत नहीं है ऐसा, कोई जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन कितना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू काम होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ओरिजिनल एक्सटेंशन 1 साल का है और हाँ। उसको एक्सटेंशन 5 साल का दे रहे हो, तो उसके लिए आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा वहां, मैं 5 साल का दिए क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये 4 साल में काम हो ही नहीं रहा, 4 साल में काम ही नहीं होगा। क्यों होगा? फलाना फलाना प्रॉब्लम है, 4 साल में काम होने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग एक्सटेंशन फॉर 5 years एंड कॉन्ट्रैक्टर हैज एक्सेप्टेड इट। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर ने बोलना चाहिए कि भाई भाई पास 1 साल में जो काम करना, आई एम रेडी, माय इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी, हाउ कैन आई वेट फॉर 5 कंटिन्यूअस ईयर एंड हाउ मच ये मेंटेनेंस क्या मैं इतना शेयर करूं और व्हाई शुड आई? दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू द क्लॉज 15. 15 क्या बोलता है कि we can restrict the work at any time. जैसे अपन बोलते हैं आज काम बंद करो, contractor has to stop the work. He has to stop the work. Stop ऐसा मतलब नहीं है कि उसपे हाथ में घमेला है इमीडिएट डाल देना किसी के मतलब किसी के ऊपर, ऐसा नहीं है। At the safer stage he should stop the work. समझ गए? At the safer stage he should stop the work. तो अपन ने स्टॉप वर्क बोलना, उसने एक वर्क स्टॉप करना। दूसरा, अपन ने जब चालू बोलना, उसने वो वर्क स्टार्ट करना। क्लॉज 15 टेल्स क्लियरली दैट। फिर अपन ने स्टॉप बोलना, उसने स्टॉप करना, अपन ने चालू बोलना, उसने चालू करना। दिस कैन बी हैपेंड, और वैसा हो सकता है। दिस आर द पावर। लेकिन उसमें क्या है, ये टोटल सस्पेंशन जो डेज है, मतलब आज बोला अपन ने बंद करो, 1 महीने के बाद बोला स्टार्ट करो, ये 30 डेज हो गए। ऐसे जो डेज है, ये अगर 90 डेज के ऊपर जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को ये लिबर्टी मिलती है कि मेरे को इससे आप मुक्त कर दो, ये झंझट से, तुम्हारा स्टॉप और शुरू से। If the total suspension period goes above 90 days, contractor has liberty to रिस्क वर्क की, मेरे को यहाँ से बंद करो। और वो भी कब बोलता है? 91 से लेके 120 डेज तक। मतलब फिर से अपन ने स्टॉप बोला तो 120 डेज के ऊपर हुआ तो ये ही कांट डू दैट, मतलब ही इज हैबिचुअल टू इट एंड ही कैन कंटिन्यू विद दैट। सो ही हैज टू थिंक ओवर इट कि भाई ऐसा करना चाहिए और मैं ऐसा देता हूं। और ये जो लॉस होगा उसका, सपोज टू बी उसका ये लॉस, टॉपिक का लॉस होगा, उसके अगेंस्ट कोई भी अपन उसको कुछ कॉम्पेंसेशन देने वाले नहीं है। दैट इज ऑल्सो मेंशन इन दिस क्लॉज। एंड वन मोर, अगर स्टॉपेज करते करते वक्त वन स्टेज ऐसा आया है कि यहां से आगे काम करना ही नहीं, अपने को यहां से आगे काम करना ही नहीं है, मतलब कमिंग टू द ओरिजिनल वन कि 1 साल का पीरियड, 1 year period, 10 lakhs work, contractor has started the work, after some 4 month we told him to stop the work, ये स्टॉप हो गया। फिर अपने 5th मंथ को काम शुरू किया, उसने स्टार्ट किया, पहले 6 मंथ को फिर से बोला स्टॉप कर दो, और 6 मंथ के बाद we have decided कि भाई ये काम करना ही नहीं अपने को। आउट ऑफ 10 lakhs some 4 lakhs का ही काम हो चुका है और बाकी 6 लाख का करना ही नहीं गवर्नमेंट को, नॉट इवन टू द वर्क, कोई जरूरत नहीं उसके काम की। it may that decision has been taken, उसके complicated consequences वो है, but decision is implemented है। और in that case अपन कॉन्ट्रैक्टर से ये काम पूरा निकाल सकते हैं अंडर क्लॉज 15। so what clause 15 tells that there is no default on the side of contractor, but government don't want to do the work, further work। in that case क्लॉज 15 से अपन वो काम निकाल सकते हैं, क्योंकि देयर इज कॉन्ट्रैक्टर को कोई पेनल्टी लगाने का सवाल ही नहीं आता, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरा शान से उसको वापस करना पड़ेगा, जितना काम हुआ है उतना काम का बिल करके वो फाइनल करना पड़ेगा वर्क, और एवरीथिंग ही हैज टू गिव, जितना जितना उसका बोलता है उतना उतना देना है। और क्लॉज 15 के पावर सिर्फ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को है, whosoever has accepted the contract, and he can decide the position, he can decide the situation।
Okay, any problem, any difficulty? नो सर। वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, और कुछ क्लॉज का आपको डिस्कशन करना है? बिकॉज वी आर ऑलरेडी completing the time. Even then we can discuss if at all it is there. कुछ है सर आपके अगर पास? हम डीएलपी प्रिपेयर कर रहे हो और हमें उसमें सर कुछ क्लोज वगैरह ऐड करने हो तो क्या हम कर सकते हैं, जैसे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वगैरह, जैसे कि कुछ टेंडर्स में सर स्कैडा भी नहीं है, अभी हमें पता चला कि ये स्कैडा भी उसमें करना होता है, तो क्या हम कर सकते हैं सर उसको? DLP means सर ये डीटीपी बोल रही। डीटीपी DTP बोलने हैं आपको, मैंने DLP सुना। ओके, DLP means defect liability period and DTP means draft tender paper. Okay. यस सर, यस सर। draft tender paper में ये जो क्लॉज है ओरिजिनल गवर्नमेंट ने जो सेट किए हैं, इसमें चेंज करने के कोई पावर नहीं अपने को, सो फार एज अवर क्लॉज इज कंसर्न। मीन्स क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 जो 58, 57, 58 जो कुछ क्लॉज है उसमें कोई चेंज करने के लिए अपने को पावर नहीं है। ये दिस इज द सर फर्स्ट थिंग। स्पेशल कंडीशंस ऑफ टेंडर में that is entirely lies to the DTP accepting authority. तो DTP accepting authority may decide कि भाई यही का क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको ये लेना है, इसका टेस्टिंग ऐसा होना चाहिए, फिर टेस्टिंग बाय दैट लैब ओनली और टेस्टिंग बाय दिस वन ओनली, और ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होना है, जो कुछ भी है दैट यू कैन ऐड करना बोले तो add somewhere, but you escape it here, so you can add. ओके सर। वो अगर सर उन्होंने जो भी टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, अगर उनको सर वी कैन सजेस्ट, अगर उनको नहीं रखना हुआ तो वो निकाल सकते हैं उसको। Correct. So DTP you are suggesting that कि भाई ऐसा नहीं ऐसा ऐसा करो, but tender accepting authority मतलब DTP accepting authority, DTP जो मंजूर करता है, DTP approving यस सर, authority, यस सर। तो that is the final, वो तो फाइनल है ना। DTP approving authority तो वो कट कर देगी अगर उनको नहीं चाहिए तो, और अगर चाहिए तो वेलकम करेगी, और अगर आपने नहीं ऐड किया और उन्होंने ऐड किया तो दैट इज आल्सो बिकॉज दे आर फाइनल अथॉरिटी। यस yes that is a good question and any more? Sir, clause 38. Clause 38, that is also very important. Clause 38 is about the excess quantity. Okay, so clause 38 में पहले ही लिखा है all quantities mentioned in the schedule B are tentative. That is correct, and that is correct because it is the estimated quantity. Estimate means what? Estimate word itself tells that it is a rough one, it is not accurate one, it is not pinpoint one, it is not exact one. So there is a chance of differ in quantities, means differ in work. तो डिफरेंस कितना एक्सेप्ट करेंगे? 25%। पर अगर 25% एक्सेस होता है या 25% लेस होता है, लेस का तो सवाल ही नहीं आता कहीं, 25% अगर एक्सेस होता है तो वी कैन एक्सेप्ट द वर्क, वी कैन एक्सेप्ट द वर्क एंड वी कैन कंटिन्यू विद द वर्क। बट अगर 25% के ऊपर वर्क जाता है, ओके, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्टर हैज टू डू द वर्क, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कंपल्सरीली वी कैन टेल हिम कि ही हैज टू डू द वर्क, और उसको 25% के ऊपर अपन उसको चांस देते हैं कि ये काम करो। अब टेंडर में क्लियर क्या लिखा है टेंडर क्लॉज में कि द रेट फॉर एक्सेस क्वांटिटीज बियॉन्ड 125% मींस 25%, 125% मींस 100 ओरिजिनल, 25 एडिशनल। एक्सेस क्वांटिटी 125 के ऊपर का जो रेट है, दैट रेट विल बी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके,
और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसा होगा? नहीं, it is from somewhere it is mentioned understanding, somewhere it is mentioned कैसा है, इनका कैसा है, it is at per current schedule of rate. जो एक्सेस रेट रहेगा वो करंट शेड्यूल ऑफ रेट से रहेगा प्लस और बिलो as per offer of the contractor to that current schedule of rate, to the current schedule of rate in which he has quoted the offer. मीन्स एक्सेस जो पेमेंट करेंगे वो करंट सीएसआर से करेंगे। जो करंट सीएसआर कौन सा, कि जहां पर जो साल में वो एक्सेस हुआ है वो साल का सीएसआर। ओके, यू गॉट मी। अगर कॉन्ट्रैक्टर इज एक्सटेंडेड फॉर 2 years का कॉन्ट्रैक्टर है, 3 years का कॉन्ट्रैक्टर है, दो ही इन दैट केस ओनली क्लॉज 38 इज डिफर हो जाता है। लेकिन एक साल में क्या होता है कि करंट सीएसआर रेट तो सेम ही रहता है और उसका ऑफर भी उसको वही है, या ऑफर उसका बिलो कम है करंट सीएसआर से तो उसको वो बिलो करना पड़ेगा। ओके, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ये दिस आई एम जो थ्योरेटिकली बोला हूँ तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास अगर नोट है तो यू कैन राइट, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज 2020 and 21, 2020-21 का एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन ऑफ 2020-21 10 lakhs का, 10 lakhs का। देखिए 20-21 का एस्टिमेशन है 10 लाख का। ओके, अब टेंडर कॉल किया 2021-22 में। नेक्स्ट एस्टिमेट अप्रूव होने के बाद टेंडर कॉल करने के लिए नेक्स्ट ईयर आ गया, तो 21-22 में टेंडर कॉल किया। ओके, टेंडर आया 4.5% अबव। टेंडर 4.5% अबव विच हैज बीन एक्सेप्टेड। तो टेंडर कॉस्ट कितनी हो गई? 14,50,000। 4.5%, आई एम नॉट टेलिंग 45% नहीं है। 10 लाख का 1,40,000, 10,40,000, 10,45,000। 10 हाँ lakhs 45,000 is your tender cost then. Is it so? Correct है? यस सर। अब देखिए 2021-22 जब टेंडर अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं उस समय का सीएसआर जो है प्रेवेलिंग सीएसआर, उससे एस्टिमेट रिकास्ट किया है, दैट एस्टिमेट कम्स 11 lakhs। सीएसआर बढ़ गया, सीएसआर 10% से इंक्रीज हो गया, तो एस्टिमेट कितना है? 11 lakhs। 10 लाख का 11 लाख का। तो देखिए 11 लाख का अगर अपन ने 21-22 में वो एस्टिमेट बनाया होता तो 11 लाख का बनता, और अपन ने 21-22 सेम ईयर में टेंडर कॉल किया तो टेंडर 10,45,000 का बनता। दैट मीन्स टेंडर इज बिलो 5.5 lakhs to the current CSR. यस Got me? यस सर। In this? सर इसके लिए वो प्राइस वेरिएशन भी तो लेते हैं ना, फिर Price? इसके लिए प्राइस वेरिएशन भी तो लेते हैं ना वो लोग, अगर काम वर्क से ज्यादा। मैं क्लॉज 38 की बात कर रहा हूँ। प्राइस वेरिएशन इज डिफरेंट। ओके 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 ठीक है। कि दो टेंडर इज 4.5% अबव, द बेसिकली टेंडर इज 5.5% बिलो टू द करंट सीएसआर। यस इज इट सो? किसी को डाउट है क्या यहाँ पे कुछ? नहीं। तो टेंडर इज 5.5% बिलो टू द करंट सीएसआर। सो ये टेंडर का जब भी कभी क्लॉज 38 आएगा और तो जो करंट सीएसआर में उसको अगर उसके बाद में ये टेंडर का काम किया उसने और 2022-23 में क्लॉज 38 आया,
2022-28 में क्लॉज 38 आया, तो वो करंट CSR लेंगे अपन और करंट CSR को 5.5% से बिलो करेंगे। बाकी उसके आइटम, टेंडर आइटम सब अबव रहेंगे 4.5%। 5% से ब्लॉक करेंगे ना सर? 5.5 करंट CSR से क्लॉज 38। ओरिजिनल टेंडर का शेड्यूल भी है वो वैसा ही रहेगा, उसको 4.5% अबव कर देंगे। बट क्लॉज 38 का जो टेंडर अमाउंट है, उसका जो रेट है क्लॉज 38 का, वो 5.5% से बिलो कर देंगे, बिकॉज he has quoted the rate below to the current CSR rate in which year he has bidding the tender document. सर 5.5 कैसे आया ये? ये देखिए सर ऐसे 5.5 तो हमको CSR 22-23 का देखना चाहिए ना, जब हम क्लॉज 38 सैंक्शन करवा रहे थे तो। मैंने 22-23 का ही CSR बोला ना। ओके 22-23 क्लॉज 38 का रेट रहेगा, उसको 5.5% बिलो बोलेंगे। अब 5.5 का कैसे आया? देखिए 21-22 को जो टेंडर एक्सेप्ट हुआ है उसका कॉस्ट है 10,45,000 और सेम ईयर का CSR बोलता है कि ये एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 11 लाख। सो 11 लाख माइनस 10.45 कितना होता है? 0.55। तो 0.55 इज 10 लाख के ऊपर 5.5% बिलो है, तो 55,000 हो जाएंगे। मतलब 10 लाख के ऊपर वो 5.5 बिलो, मतलब 11 लाख के ऊपर वो 5.5 बिलो से काम कर रहा है, क्योंकि वो काम 11 लाख का काम वो 10,45,000 में कर रहा है। 21-22 में उसका 11 लाख का वर्क का कॉस्ट था करंट CSR से, और वो काम 10,45,000 में कर रहा है। तो 55,000 दैट मींस ही 5.5% बिलो टू द 11 लाख। 11 से 555 आते हैं। 11 लाख का 5.5% बिलो काटोगे तो बिलो निकालोगे तो यू विल गेट द अमाउंट 10.45 lakhs। Correct, sir. सो उसका जब भी कभी क्लॉज 38 आएगा, जब भी कभी उसका 22-23 में भी आएगा क्लॉज 38, तो 23-24 का करंट CSR को अपन 5.5% से बिलो कर देंगे। सर अगर ऐसे तो है, जैसे इस समय अब जब सारे टेंडर बिलो ही जा रहे हैं, मान लीजिए 15-15, 20-20% बिलो पे सारे वर्क एक्सेप्ट होते हैं, और इस तरीके से हम करेंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्टर का और बिलो होता चला जाएगा, अगर क्लॉज 38 अगर हम सेक्शन करते हैं तो। There is no question of it. There is no question. अच्छा आप जस्ट बाय द क्यूरियोसिटी बोलिए, आप बोलिए आपने कितना बिलो परसेंट का टेंडर एक्सेप्ट मतलब काम किया है, टेंडर एक्सेप्ट किया, टेंडर का इम्प्लीमेंटेशन किया है? 18, 20, 30, 40 बिलो परसेंट भी किया है सर 75% बिलो। 55% बिलो और 55 के नीचे 75 सर 75। वाह क्या बात है। 40, 38, 33, 25, 18, 16 क्योंकि 75 तो जनरली। आपने है उसके बिलो। तो सर 75 में तो APLD3 भर देगा, उसको बचेगा क्या? 75 में तो सर टेक्निकल सैंक्शन ही रिव्यू होना चाहिए कि उन्होंने बनाया कैसे है। मैं बोलता हूँ मैंने 85% बिलो टेंडर का काम किया है। अरे सर काम हुआ था क्या आपका? देखिए 1,15,00,000 का काम था, नहीं 18 लाख, 1,18 लाख का काम था, और उसने 85% बिलो भरा, मतलब 1 करोड़ के 15 लाख और 18 लाख के 2 लाख जो कुछ भी है, तो उसका 1,18,00,000 का फाइनल बिल 17 लाख था। क्लियर कट 1 करोड़ सेविंग था गवर्नमेंट के लिए, और वो किया है मैंने 85% बिलो। दैट मे बी रिकॉर्ड इन महाराष्ट्र, मे बी रिकॉर्ड इन महाराष्ट्र, आई डोंट नो। इतने में क्वालिटी कैसे देगा? वर्क क्वालिटी तो फिर बहुत बेकार हो जाएगी इतने बिलो अगर काम करेगा तो। नहीं, अगर आपको कोई फ्री में करके देना चाहता है तो क्या आप बोलोगे आप नहीं हम पैसे देंगे आपको? ये बात तो सही, फ्री में कर रहे हो, बिल्कुल करवाएंगे हम।
हाँ, एक है कि अपने को ताजमहल बनाना है तो भैया तेरे को ताजमहल ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ताजमहल बनाना है उसके जगह तू छोटा सा कुछ तो भी बना के देगा, वो नहीं चलेगा। वो संगमरमर ऐसा जो कुछ भी है वो होना हमको, बाकी तो बीवी नहीं। का मकबरा मिलेगा फिर। हाँ, बाकी तो नहीं चलेगा। हमको जो बनाना है वही बना के देना होगा आपको। बाकी एल्स ना कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। ओके सर। ओके, थैंक्स फॉर डिस्कसिंग विथ यू। और बहुत अच्छा लगा मुझे somebody has 75% below also done the work, that is also good thing. आपने बीट कर दिया ना वो 85 किलो बता करके। इसलिए आई एम देयर। और मैंने डेयर करके ई को बोला कि यू कैन एक्सेप्ट दिस टेंडर, और एक्सेप्ट करो। दैट एसी के पास गया तो एसी भी बोला, एसी को भी बोला ये एक्सेप्ट द टेंडर व्हेन ही इज रेडी टू डू वर्क, व्हाई वी आर नॉट अपोजिंग वर्क, राइट। आज जो है, आज जरा इम्पॉसिबल है, आज बहुत कॉम्प्लीमेंटेड है आज, क्योंकि बिलो दिया तो उसके बाद में आपको उसका एडिशनल परफॉर्मेंस और बहुत कुछ लेना है। तो आज का जरा जो मुश्किल जाएगा, लेकिन वहां हमने किया, दैट टू सक्सेसफुली कंप्लीटेड द वर्क, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द वर्क। नहीं सर, मेरे वाला केस में कॉन्ट्रैक्टर ने ये रिप्लाई किया, मेरे गांव का काम है, बोले फ्री में करूंगा, कौन रोकेगा मेरे को। उसने वैसा रिप्लाई दिया। तो बस उसको बोलना वो 25% भी नहीं मिलेंगे बोलना तेरे को। सर आज के डेट में 25% कहा जाए तो 140% तो सिर्फ एपीएससी देगा वो, जितने का काम नहीं है उसका 1.5 टाइम तो एपीएससी रहेगा खाली। तो व्हाई डू वी थिंक ऑन हिज पार्ट, लेट हिम डू। वो अगर देने को तैयार है तो अपने को क्या प्रॉब्लम है, राइट। सो मेनी थैंक्स। एंड और कुछ डिफिकल्टीज वी कैन डिस्कस होगा राइट नाउ आल्सो। सर कम से कम एक सेशन सर और लीजिए। मैंने ये आरटीसी नागपुर में लेक्चर दिया था, तो फॉर clause 2, only for clause 2 I have taken one session, only for clause 2, and they told me to discuss on clause 2, let us have a clause 2 का पूरा उसको